One online classes, class 8th, subject science, chapter 10, part 3. Hormones other than sex hormones. लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन. Look at figure 10.3. Again, the hormones secreted by the pituitary stimulate testes and ovaries to produce their hormones. You have already learned that the pituitary gland is an endocrine gland if it is attached to the brain. आप अवलोक 10.3 का में पुनः अवलोकन कीजिए. पीयूष ग्रंथि द्वारा स्थापित हार्मोन जननांगों के उनके हार्मोन उत्पन्न करने के लिए उद्दीपित करते हैं. आप पढ़ ही चुके होंगे कि पीयूष ग्रंथि एक अंतस्रावित ग्रंथि है जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है. अपार्ट फ्रॉम द पिट्यूटरी, द टेस्टिस एंड द ओवरीज, देयर आर अदर endocrine glands in the body such as thyroid, pancreas and adrenals. पीयूष ग्रंथि वृषण एवं अंडाशय के अतिरिक्त हमारे शरीर में थायराइड, अग्नाशय एवं एड्रिनल जैसी कुछ अन्य अंतस्रावी ग्रंथियों में भी होती है. Bujo and Paley had once visited their aunt who was a doctor and remembered that a boy named Kaka had a very big and bulging throat. Their aunt had told them that Kaka was suffering from goiter, a disease of the thyroid gland. Kaka's thyroid gland was not producing the hormones thyroxine. बूझो और पहली को याद है कि एक बार जब वह अपनी डॉक्टर बुआ के यहाँ गए थे तब उन्होंने वहाँ काका नाम के एक लड़के को देखा था जिसका गला बहुत फूला हुआ था और उभरा हुआ था. उनकी बुआ ने उन्हें बताया कि काका गाइटर नामक व्याधि से ग्रस्त है जो थायराइड ग्रंथि का रोग है. काका की थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं कर रही थी. Their aunt also told them that their uncle was suffering from diabetes because his pancreas was not producing the hormone insulin in sufficient quantities. Bujo and Paheli then asked their aunt about the adrenal glands, which are also shown in the chart hang on the wall of her clinic. The aunt told them that adrenal gland secrete hormones which maintain the correct salt balance in the blood. Adrenals also produce the hormones adrenaline. It helps the body to adjust to stress when one is very angry, embarrassed or worried. अब उनकी बुआ ने यह बताया कि उनके फूफा जी मधुमेह से पीड़ित हैं क्योंकि उनका अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर रहा था. बूझो एवं पहेली ने उनके दवाखाने में टंगे हुए चार्ट को दर्शाए गए एड्रिनल ग्रंथि के विषय में पूछा. उनकी बुआ ने उन्हें बताया कि एड्रिनल ग्रंथि ऐसे हार्मोन स्रावित करती है जो रुधिर में नमक की मात्रा में को संतुलित करता है. एड्रेनलिन नामक हार्मोन का स्त्रवण भी करती है. एड्रेनलिन क्रोध, चिंता और उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करता है. थायराइड एंड एड्रेनल secrete their hormones when they receive order from the pituitary through its hormones. Pituitary also secretes growth hormones which is necessary for the normal growth of a person. थायराइड एवं एड्रिनल ग्रंथि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्थापित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त आदेश के अनुसार ही अपने हार्मोन का स्राव करती है. पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन भी स्रावित करती है जो व्यक्ति की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक है. रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ स्टोरी ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग्स. कीट एवं मेढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान. You have already learnt about the life story of the silk moth and the frog. The caterpillar has to pass through various stages to become an adult moth. Recall from class 7th the stages of the life story of the silk moth. Similarly, the tadpole passes through contain stages to become a frog. This changes from larva to adult is called metamorphosis. Metamorphosis in insect
is controlled by insect hormones. In a frog, it is controlled by thyroxine. The hormones produced by thyroid thyroxine production requires the presence of iodine in water. If the water in which the tadpoles are growing does not contain sufficient iodine, the tadpoles contain become adult. आप रेशम के कीट एवं मेढक के जीवन चक्र के विषय में तो पढ़ ही चुके हैं। इल्ली को वयस्क सलभ बनाने तक अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। कक्षा 7 में पढ़े रेशम के कीट के जीवन चक्र का स्मरण कीजिए। इसी प्रकार टेडपोल का भी वयस्क में मेढक बनने के लिए अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। लार्वा में वयस्क बनने के लिए इस परिवर्तन को कयांतरण कहते हैं। कीटों में कयांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है। मेढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरॉक्सिन इसका नियमन करता है। थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है। यदि जल में उसमें टेडपोल वृद्धि कर रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं है, तो टेडपोल वयस्क मेढक में परिवर्तित नहीं हो सकेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जननात्मक स्वास्थ्य। द फिजिकल एंड मेंटल वेल-बीइंग of an individual is regarded as an individual health. To keep the body healthy, every human being and any age need to have a balanced diet. The person must also observe personal hygiene and undertake adequate physical exercise. During adolescence, however, these become even more essential as the body is growing. जननात्मक स्वास्थ्य, व्यक्ति का कायिक एवं मानसिक विसंगति मुक्त होना उस व्यक्ति का स्वस्थ कहलाता है। किसी भी आयु के व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसे संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को व्यक्तित्व स्वच्छता एवं सफाई का नियमित रूप से पालन एवं पर्याप्त शारीरिक व्यायाम भी करना चाहिए। किशोरावस्था में जब शरीर वृद्धि करता है तो उपरोक्त बातें और भी अधिक आवश्यक हो जाती हैं। न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द एडोलसेंट, किशोर की पोषण आवश्यकताएं। एडोलसेंस इज ए स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हेंस द डाइट फॉर एन एडोलसेंट has to be carefully planned. You have already learned what a balanced diet is. Recall that a balanced diet means that the meal includes proteins, carbohydrates, fats, and vitamins in requisite proportions. Our Indian meal of roti, rice, dal, pulses, and vegetables is a balanced meal. Milk is a balanced food in itself. Fruits also provide nourishment for infant. Mother's milk provides all the nourishment that they need. किशोरावस्था तीव्र वृद्धि में एवं विकास की अवस्था है, अतः किसी भी किशोर को आहार नियोजन अत्यंत सावधानीपूर्वक करना चाहिए। आप पढ़ ही चुके हैं कि संतुलित आहार क्या है। स्मरण कीजिए कि संतुलित आहार का अर्थ है भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश। हमारे भारतीय भोजन जिसमें रोटी, चावल, दाल एवं सब्जियां होती हैं एक संतुलित आहार है। दूध अपने आप में संतुलित भोजन है। फल भी हमें पोषण देता है। शिशुओं को माँ के दूध से संपूर्ण पोषण मिलता है, जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है। आयरन बिल्ड ब्लड एंड आयरन रिच फूड सच एज लीफी वेजिटेबल्स, जगेरी, मीट, सिट्रस, इंडियन gooseberry, आंवला आर गुड फॉर एंडोलसेंट। लोह आयरन तत्व रुधिर का निर्माण करता है तथा लोह प्रचुर खाद्य जैसे कि पत्तीदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा, आंवला इत्यादि किशोर के लिए अच्छे खाद्य पदार्थ होते हैं। चिक आइटम फॉर लंच एंड डिनर इन योर मील्स इज द मील बैलेंस एंड न्यूट्रिशंस। डज इट इंक्लूड सेरेलक which give energy, and milk, meat, nuts and pulses which provide proteins for growth. Also does include fat and sugar that give energy. What about fruits and vegetables which are protective food, chip and packet of or Trinidad snacks thought very tasty should never replace regular meals as they do not to have adequate nutritional value.
आपने दोपहर एवं रात के भोजन के खाद्य पदार्थों की जांच कीजिए। क्या भोजन संतुलित एवं पोषक है? क्या इसमें ऐसे खाद्यान्न सम्मिलित हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं? क्या इनमें दूध, मांस, नट एवं दालें भी शामिल हैं जो वृद्धि हेतु प्रोटीन प्रदान करते हैं? क्या इसमें वसा एवं शक्कर भी शामिल है जो ऊर्जा प्रदान करते हैं? फल एवं सब्जी का क्या स्थान है जो लक्षी भोजन है? चिप्स तथा पैक किए हुए अथवा डिब्बा बंद खाद्य यद्यपि स्वादिष्ट होते हैं परंतु उन्हें नियमित भोजन के स्थान पर नहीं खाना चाहिए क्योंकि उनमें पोषक मात्रा पर्याप्त नहीं होती है। पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत स्वच्छता। एवरीवन शुड हैव ए बाथ एट लीस्ट once every day. It is more necessary for teenagers because the increased activity of sweat gland sometimes makes the body smelly. All parts of the body should be washed and cleaned every day. Cleanliness is not maintained. There are chances of catching bacterial infection. Girls should take special care of cleanliness during the time of menstrual flow. They should keep track of their menstrual cycle and be prepared for the onset of menstruations. प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार स्नान करना चाहिए। यह किशोरों के लिए और भी आवश्यक है क्योंकि श्वेत ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर से गंध आने लगती है। शरीर के सभी भागों का स्नान करते समय भली प्रकार से धोकर करना चाहिए। यदि सफाई नहीं रखी गई तो जीवाणु संक्रमण होने का खतरा रहता है। लड़कियों में ऋतुस्राव के समय सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्हें अपने ऋतुस्राव चक्र को ध्यान रखते हुए ऋतुस्राव के लिए तैयार रहना चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज, शारीरिक व्यायाम, वॉकिंग एंड प्लेइंग इन फ्रेश एयर कीप्स द बॉडी फिट एंड हेल्थी. All young boys and girls should take walks, exercise and play outdoor games. ताज़ी हवा में टहलना एवं खेलना शरीर को चुस्त एवं स्वस्थ रखता है। सभी युवा किशोर लड़के एवं लड़कियों को टहलना, व्यायाम करना एवं बाहर खेलना चाहिए। से नो टू ड्रग्स, नशीली दवाओं का निषेध करें। Adolescence is a period of much activity in the body and mind which is a normal part of growing up. So do not feel confused or insecure if anybody suggests that you will get relief if you take some drugs. Just say no unless prescribed by the doctor. Drugs are addictive. If you take them once, you feel like taking them again and again. They harm the body in the long run. They ruin health and happiness. किशोरावस्था व्यक्ति में के शारीरिक एवं मानसिक रूप से अधिक सक्रियता का समय है जो वृद्धि काल का एक सामान्य भाग है। अतः भ्रमित अथवा असुरक्षित न महसूस करें। यदि कोई व्यक्ति आपको यह बताता है कि किसी ड्रग, नशीली दवा का सेवन से आप अच्छा अथवा तनाव मुक्त महसूस करेंगे तो आपको इसके लिए ना ही कहना चाहिए जब तक वह दवा डॉक्टर द्वारा ना दी गई हो। ड्रग्स नशीले पदार्थ हैं जिनकी लत पड़ जाती है, तो यदि आप एक बार ले लेते हैं तो आपको इन्हें बार बार लेने की इच्छा होती है, परंतु कालांतर में यह हानिकारक है। यह स्वस्थ एवं खुशी दोनों को ही बर्बाद कर देते हैं। You must have heard about AIDS, which is caused by a dangerous virus, HIV. This virus can pass on to a normal person from an infected person by sharing the syringes used for injecting drugs. It can also be transmitted to an infant from the infected mother through her milk. The virus can also be transmitted through sexual contact with a person infected with HIV. आपने एड्स के विषय में
तो अवश्य ही सुना होगा, जो HIV नामक खतरनाक विषाणु या वायरस द्वारा होता है। यह वायरस एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सिरिंज द्वारा भी जा सकता है। वायरस का संक्रमण दूसरे माध्यमों जैसे कि पीड़ित रोगी मां के से दूध द्वारा उसके शिशु में आ सकता है। HIV से पीड़ित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क स्थापित करने द्वारा भी इस रोग का संक्रमण हो सकता है। थैंक यू।